So good morning, everybody. I hope you all are doing good. In yesterday's class, we have discussed about uh, unemployment and types of unemployment, right? And one more topic we covered yesterday was uh, Niti Aayog. Okay, two topics we covered yesterday. One was the types of unemployment, and the other one was Niti Aayog. So I would like to ask all the participants that if they have any doubt in any of yesterday's topic, they can question me or they can text over here so that I can discuss those. Okay. Then we can move to the next class. Okay. Yes, if you find any difficulty in understanding yesterday's class or yesterday's topic, anything you didn't understood or you misunderstood anything, you can ask me. Okay. Yes, participants, anybody is having any doubt in yesterday's class? I'm waiting for you all for your nod to move forward. Yes. Yes, किसी का कोई reply आया? Any reply? No reply? Okay. How many of them have joined? कितने join हुए? 6 जने. चलो, okay. Yes, participants, anybody is having any doubt in yesterday's class? You can just text me or you can ask me, unmute yourself and you can question me. I'm able to hear you. Yes, all the participants. Please reply. Okay, then shall I proceed now? Then we'll proceed to the next class. Okay. This question, this is also one of the important question. This question also has the weightage of around 5 marks. Okay. In your previous paper also, this question has been asked for many number of times. We'll do this question. Okay. So what is the question? The question is, what are the causes of rural indebtedness? Let us understand what is rural indebtedness firstly. Okay. Rural indebtedness हम बोलते किसको? Okay. वी आर अवेयर दैट रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज का मतलब वो होता है कि भाई जो शहर है, ओके, जहाँ पे सिटीज है, ज्यादा डेवलपमेंट है, हम उनको अर्बन एरियाज बोलते हैं. रूरल एरियाज उनको बोलते हैं जहाँ पे देर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क डन एंड मेनी थिंग्स लाइक all the agriculture and its allied activities are carried on. Okay. Or in the same way, where there is lot of cultivation land and all such kind of areas, we call it as forest area, we call it as rural एरियाज. ठीक है. चलिए, अब ये है कि भाई रूरल एरियाज में इनडेप्टनेस का मतलब क्या होता है? डेप्ट किसको हम बोलते हैं? हम पहले इसको समझ लें. डेप्ट किसको बोलते हैं? डेप्ट यानी कर्ज. ओके. इनडेप्टनेस, कर्ज के अंदर क्या बोलते हैं? डूब जाना. ओके. उसको हम बोलते हैं रूरल इनडेप्टनेस. ओके. सो मूविंग टू दिस टॉपिक, रूरल इनडेप्टनेस का मतलब, सवाल ये, क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रूरल इनडेप्टनेस? व्हाई the debt in rural areas has been increasing over the period of time? Why the debt is increasing day by day in rural areas? Okay. Every now and then you can see that whenever there is an election or whenever some party comes to the power, they come up and give some promises to the farmers and to the people living in the rural areas that they will waive off their loans and they'll give them the subsidized loans. And there are multiple promises which are made by the many governments whenever they come up with some agenda. Okay. We all are aware that जब कभी भी इलेक्शन होता तो बहुत सारे पार्टीज अपने अपनी तरह पे, अपने अपने तौर पर क्या करते कि भाई रूरल एरियाज वालों के लिए कुछ ना कुछ पर्क्स लेके आते हैं, सो दैट टू 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 रिड्यूस द डेप्ट, द बर्डन ऑफ डेप्ट फ्रॉम इन रूरल एरियाज. ओके. नाउ हम पढ़ेंगे कि भाई रूरल एरियाज में डेप्ट में क्यों लोग ज्यादा मुलविस हो रहे, व्हाई द डेप्ट इज बीन इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन रूरल एरियाज. ठीक है.
तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका लो लेवल ऑफ सेविंग्स। ओके, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, क्रॉप फेलियर्स, ठीक है। लो लेवल ऑफ सेविंग्स का मतलब वी ऑल आर अवेयर दैट हम जब कभी भी फार्मर्स को हम देखें कि भाई अब जब कभी भी वो लोग कल्टीवेशन करते हैं तो उनके कल्टीवेशन के प्रोसेस में इनकम जो है, इनकम जो है कोई परमानेंट और पैरेलली जो है उनके पास कोई सोर्सेस नहीं रहते। ओके, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर कल्टीवेशन। ओके, लेट अस अज्यूम वही सेम कल्टीवेशन में अगर उनका क्रॉप कंप्लीटली डैमेज हो गया, if the crop has been completely failed, there is no other option for them to compensate that. Okay, उस क्रॉप फेलियर्स की वजह से भी ये लोग क्या करते हैं कि भाई दे ट्राई टू बोरो द फंड्स फ्रॉम मेनी अदर फाइनेंशियर्स एंड अदर रिसोर्सेस टू टू overcome the problem, overcome the loss of the crops, right? Okay, the loss is not a minimal loss, the loss is very hectic loss, so that they could not bear it. Okay, to overcome that only they will take lot of debt from अदर्स। ओके, ये पहला रीजन है जिसकी वजह से रूरल एरियाज में डेप्ट बढ़ रहा। ओके, एक तो लो लेवल ऑफ सेविंग्स और दूसरा क्रॉप फेलियर्स। क्रॉप फेलियर समझ में आ गया आपको? चलिए, सेकंड पॉइंट है इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लें आप, ठीक है। देखिए, डेप्ट इनहेरिटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्ट इनहेरिटेंस? वी ऑल आर अवेयर दैट इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि देखिए फादर है, फादर कोई चीज कल्टीवेट करते करते इफ ओके ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ही हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ओके, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कल्टीवेशन इफ ही हैज टेकन सम काइंड ऑफ डेप्ट, ओके, वो जो कर्ज उन्होंने लिए, अब वो कर्ज उनकी मौत के बाद डेफिनेटली इट कम्स ऑन देयर चिल्ड्रन, राइट? ओके, तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से रूरल एरियाज में डेप्ट बढ़ रहा। ओके, इनडेप्टनेस में लोग फंसते जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आएगा, लो लेवल ऑफ सेविंग्स एंड क्रॉप फेलियर्स। दूसरा है डेप्ट इनहेरिटेंस, यानी फादर का डेप्ट बेटे पे आ रहा, बेटे का डेप्ट उसके बेटे पे आ रहा, इस तरह जो है ये चलते जा रहा। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट टुगेदर दे आर इंक्रीजिंग द burden of debt on the farmers, right? This will definitely pull them back into the indebtedness. Understood everyone? Okay, the first one is done, second one is also done. Third point is borrowing funds for unproductive purposes. चलिए, थर्ड पॉइंट है borrowing funds for unproductive purposes. Yes, everybody, are you able to hear? Participants, is my voice clear? Are you able to hear? Yes or no? Come on, you'll have to give a little bit response. थर्ड पॉइंट इज बोरोइंग फंड्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। देखिए, बोरोइंग फंड्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस का मतलब ये होता है, एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। देखिए, इंडिया में, इंडिया के कल्चर में अगर हम देखें तो मैरिज इज अ वेरी वास्ट बर्डन ऑन द पेरेंट्स ऑफ इंडियन पेरेंट्स, राइट? वी ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। ओके, इंडिया में मैरिज एक बहुत बड़ा बर्डन है, इट हैज बिकम अ वेरी बिग बर्डन फॉर द पेरेंट्स लिविंग इन इंडिया, राइट? अब पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, उनके पास इनकम के सोर्सेस नहीं है। ओके, टू फुलफिल टू फुलफिल द टू cover up the expenditure of the marriage, what they actually try to do, they'll definitely borrow. मैरिज क्या है? कोई प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, मैरिज एक अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। शादी दो लोग करते लेकिन पूरा गांव जमा होता, पूरे गांव वालों के लिए खर्च करना, उनके लिए फूड के अरेंजमेंट्स करना, there are multiple responsibilities that are being overburdened with the Indian parents. Okay, तो ये definitely एक unproductive purpose हो गया। Okay, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं वहां पे अनप्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए लोन्स बोरो कर रहे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग ऑन दैट। ओके, एक इंस्टेंस तो मैं दिया कि मैं मैरिज के ऊपर, लेट अस अज्यूम एक साल की एक आदमी की एवरेज इनकम फार्मर की, लेट अस अज्यूम अगर 10 लाख रुपए है तो पूरे साल भर की इनकम जमा करने के बावजूद भी एक मैरिज का कॉस्ट
he cannot fulfill. Okay, the cost is not being covered in 10 lakh rupees. Okay, this is also the reason which is pulling them back into the indebtedness. Understood everybody? जो कर्ज में डूब रहे हैं वहां के लोग, उसमें से एक रीजन ये भी है कि बोरोइंग द फंड्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट वन इज increase in cultivation cost. देखिए हम सबको मालूम है कि whenever an economy grows the prices of each and every product rises. Okay, definitely ये बात सही है कि भाई every year the cost of cultivation increases. Okay, we are highly dependent on monsoons, we are highly dependent on other sources. Okay, but still we, if you look at here, there is lot of expenditure to be incurred to grow the crops. Okay, cultivation का जो cost है वो increase हो रहा, definitely increase हो रहा. क्यों? क्योंकि देखिए जब इन्फ्लेशन बढ़ता तो इन्फ्लेशन का असर तमाम चीजों पे पड़ता. ओके, व्हेनेवर देयर इज अ राइज, लेट अस अज्यूम अगर सिर्फ सिर्फ जो है एक चंद चीजों में भी अगर प्राइसेस बढ़ गए, चंद चीजों के भी प्राइसेस बढ़ गए, तो उन चंद चीजों के प्राइसेस का इफेक्ट बहुत सारी चीजों पे पड़ता. लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसा मिल्क है. लेट अस अज्यूम मिल्क, दूध एक ऐसी चीज है, इट इज यूज्ड इन मल्टीपल कमोडिटीज. ओके, इफ द प्राइस ऑफ जस्ट मिल्क इज बीन इंक्रीज बाय ओनली जस्ट 2 रुपीज, लेट अस अज्यूम 2 रुपये से भी अगर दूध महंगा हो गया तो क्या होता? उसके बदले में पनीर महंगी होती, उसके बदले में मलाई महंगी होती, उसके बदले में खोवा महंगा होता, उसके बदले में घी महंगा होता. राइट, ये सर नो, एक चीज के प्राइस के बढ़ने पे मल्टीपल कमोडिटीज पे इसका इफेक्ट पड़ रहा. तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की वजह से जब प्राइसेस बढ़ते, whenever there is an increase in the prices, definitely it will affect the cultivation. Every year the cultivation cost also is been increasing, we all are aware about that. Okay, जब कॉस्ट बढ़ते तो होता क्या, अगर वो कॉस्ट को हम कवर नहीं कर सक रहे तो डेफिनेटली विल गेट ट्रैप्ड इन सम काइंड ऑफ डेप्ट. हमको जो है किसी के दर पे जाके वी नीड टू बोरो सम मनी डेफिनेटली. ओके, दिस इज अगेन पुलिंग द रूरल पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज टू द indebtedness. Understood everybody? So moving to the next point. Insufficient सपोर्ट प्राइसेस. ये जो पॉइंट है ये आपकी जनरल नॉलेज भी होना चाहिए. देखिए ये जो पॉइंट है इसको आप, अगर आपको एमएसपी नाम का एक एमएसपी के बारे में अगर मालूम है तो ये डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड दिस. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी हम किसको बोलते हैं? एनी पार्टिसिपेंट कैन आंसर मी, राइट? यस पार्टिसिपेंट्स, कम ऑन. एमएसपी हम किसको बोलते? कैन एनीवन टेल मी? ओके, देयर इज नो वन वांट टू आंसर. ओके, एमएसपी का मतलब होता मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता. लेट अस अज्यूम अगर देखो टमाटे हैं, ये इसका जो क्रॉप है ये ऑल द टाइम इट इज इन द cultivation process, but sometimes what actually happens is the prices of tomatoes shoot up, and sometimes what actually happens that there will be a less demand of tomatoes. What actually happens, the prices of tomatoes go down. When these prices goes down, the farmer cannot recover the cost which he has been put up to cultivate some the tomatoes. जो चीज बनाने में जितने पैसे लगे वो कॉस्ट भी रिकवर नहीं होता जब जो है प्राइसेस गिर जाते. तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई गवर्नमेंट गिव्स देम मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द पर्टिकुलर क्रॉप्स. ओके, टू ओवरकम द एक्सपेंडिचर विच द फार्मर हैज इनकर्ड टू प्रोड्यूस सम क्रॉप. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ओके, तो ये जो सपोर्ट प्राइसेस है गवर्नमेंट की तरफ से, दोज आर इनसफिशिएंट. वो इनसफिशिएंट सपोर्ट प्राइसेस की वजह से भी एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है लोन्स लेना पड़ रहा, और फाइनेंशियर्स के पास से लोन लेना पड़ रहा, या तो बैंक्स की तरफ से लोन लेना पड़ रहा. तो ये भी एक वजह बनी कि जो है which is pulling them back into the trap of indebtedness. Understood everybody? So moving to the last point.
चलिए लास्ट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सी, if you look at this term non-financial institutions, what do you actually mean by that? Non-financial simply meaning है कि भाई हम सबको मालूम है फार्मर्स की इनकम इतनी ज्यादा नहीं रहती. ओके, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे बैक द लोन एज सुन एज. ओके, so what they actually try to do whenever they whenever they visit the banks, what actually happens, the bankers give them multiple tasks. Okay, and they put up multiple criteria to 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 avail the loan. Okay, but when they go to some banks, what actually happens, the bankers they think lot and they ask them multiple things and they ask a lot of paperwork, and moreover they ask how will you repay back the loan. Okay, on those grounds the banks give them the loans, but what actually happens, they don't they whenever they move into the bank, this is not the case. Bankers क्या करते हैं कि भाई they'll try to find out how come this fellow will repay back the loan. ओके, उनके पास सिंपल चीज ये रहती कि भाई ये आदमी रीपे कैसा करेगा. ओके, तो होता क्या, फार्मर्स क्या करते कि भाई इतने ज्यादा टेंशन लेने के बजाय व्हाट दे एक्चुअली टू ट्राई टू डू, दे गो टू द नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसा फाइनेंशियर्स हैं. ओके, लोकल लोग हैं जो जो जिसके पास पैसा ज्यादा रहता, उनके पास से क्या करते कि भाई बहुत ज्यादा लोन उठा लेते और हाइयर इंटरेस्ट रेट पे लोन उठा लेते. ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. ओके, बैंकिंग क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते पेपर वर्क लगता, बहुत सारे क्या बोलते वहां पे जो है डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता, वेरिफिकेशन होता. इसमें क्या है, एक लंबा टाइम जाता, और लंबा टाइम वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. व्हेन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, व्हाट एक्चुअली हैपेंस, the procedure of availing loan also takes some time. Okay, when if you visit the non financial institutions, they instantly provide you the loan, but whenever they are providing the loan, they give you the loan on the higher interest rate. जब हाइयर इंटरेस्ट रेट रहता तो होता क्या कि अगर डेप्ट को हम रिकवर नहीं कर सके, जो क्रॉप का कल्टीवेशन का कॉस्ट है रिकवर नहीं कर सके, तो होता क्या, तो दैट सेम पर्सन व्हाट ही विल डू, ही विल गेट एंगेज्ड इन द ट्रैप ऑफ indebtedness. Understood everybody? This is also the reason which is pushing them back to the indebtedness. Okay, so these all are the points which are pulling pushing the farmers and people living in the rural areas to the rural indebtedness. Okay, as of now, right now, the the debt which is held with the Indian farmers is more than 5 lakh crore right now. Do remember this one, more than 5 lakh crore of debt is being burdened on the rural area, people living in the rural areas. Do understand this one. Okay, participants, you all have understood this one. Once again, I'll repeat. The first point was low level of savings and crop failure. This is the first reason. Second one is debt inheritance from the parents. Third one is borrowing funds for unproductive purposes. Fourth one is increase in the prices of cultivation cost. Understood everyone? Easily you can understand. Fifth one is insufficient support prices. जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइसेस आते हैं वो insufficient है. ठीक है, the last one is dependence on non-financial institutions. Okay, these are not legal actually. Due to these illegal activities only, they get themselves trapped into the debt. Okay, these all are the 5 to 6 reasons which have been listed over here. I would like to ask the participants, if they find any difficulty in understanding this any of the point, you can question me or you can text me over there. Okay, let me have a small break, then we'll continue.
Okay. So yes, participants, anybody is having any doubt, you can ask me. Okay. कुछ डाउट है इसमें? No, sir. Okay, you have clearly understood all this? Yes, sir. चलिए, okay. So moving to the next topic. Alhamdulillah. चलिए, तो ये एक आंसर है। देखो बाबा, ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन है। अब तक अपन एक 4 5 मार्क के क्वेश्चंस करे टिल नाउ। ओके, प्रीवियस क्लास में 2 करे थे, राइट? एक अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एक दूसरा वाला नीति आयोग के ऊपर, वो दोनों भी पढ़ना है आपको। अभी एक इससे पहले पढ़े थे रूरल इंडेप्टनेस के ऊपर, वो भी याद करना है। ये कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का आंसर है, ये भी याद कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक है? Okay, now moving to the class, moving to the topic. देखो, what is this actually? What is this I have written on the board? If you can see on the board, Kaleshwaram lift irrigation project. Can anyone tell me what is this actually? ये जो बोर्ड पे लिखा हमें क्या है ये? Yes, students, come on. I'm waiting for your response only. No response? Okay. चलिए, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, इस वक्त का राइट नाउ दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। वो कहाँ पे है? तेलंगाना में है इस वक्त। कहाँ पे है बाबा? यस, तेलंगाना में। तेलंगाना में ये आता आपका, क्या बोलते हैं, मेदीगड्डा बैरेज बोल के एक बैरेज है, करीमनगर से पहले आता है। ठीक है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इस वक्त का, जिसका कॉस्ट है अराउंड 80,000 करोड़। किसका बाबा? 80,000 करोड़। दिस दिस प्रोजेक्ट हैज बीन द टिल नाउ, टिल डेट, द बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो है तेलंगाना में। ये अलग बात है कि इस प्रोजेक्ट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली, उसकी एक अलग रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस है। ठीक है? लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल तेलंगाना के अंदर, ये जो तेलंगाना के जो ऊपर के एरियाज हैं, तेलंगाना कैसा है मालूम बाबा आप लोगों को? तेलंगाना जो है कि कुछ रीजन्स ऊपर हैं, कुछ रीजन्स नीचे हैं, और हैदराबाद दरमियान में है। तो होता क्या एक्चुअली, हमारे पास जो नीचे के रीजन्स हैं, नीचे के रीजन्स में गोदावरी का जो रिवर है, इट फ्लोस, द रिवर गोदावरी फ्लोस फ्रॉम देयर। ओके, और ये जो गोदावरी रिवर है, गोदावरी रिवर और एक रिवर है प्राणहिता रिवर बोल के, ये एक छोटे रिवर्स, ये दोनों रिवर्स एक पॉइंट में मीट करते हैं तेलंगाना में। ओके, उस पॉइंट का नाम है कालेश्वरम। समझ में आ रही बात? उस पॉइंट का नाम है कालेश्वरम। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करी कि भाई निचले एरियाज से पानी उठा के
ऊपर के जो एरिया से वहां तक पानी पहुंचाने का एक प्रोजेक्ट करी. ओके, यू कैन इजीली फाइंड लॉट ऑफ स्टफ अवेलेबल ऑनलाइन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट. ओके, कालेश्वरम के बारे में. तो ये जो प्रोजेक्ट है, हुआ क्या वहां पे कि भाई वहां पे जो जो मीटिंग पॉइंट है प्राणहिता रिवर और गोदावरी रिवर का, कहाँ पे है? ये मेदीगड्डा बैरेज बोल के एक बैरेज है, दो रिवर्स का एक मीटिंग पॉइंट है. वहां पे गवर्नमेंट क्या करी कि भाई लिफ्ट बने. लिफ्ट यानी पानी को वहां से उठाना, फिर एक कैनाल बनाना, ऊपर के एरियाज में पहुंचाना. इस तरह समझ में आ रही बात? व्हाट दे एक्चुअली डिड, दे लिफ्ट द वाटर फ्रॉम देयर. ओके, दे आर sending it to the upper areas, upper regions in the Telangana. Okay, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? What is the main objective? The main objective of this particular project was to overcome the irrigation problem in upper regions of Telangana. Understood everybody? To overcome the problems of upper region in Telangana. Understood everybody? देखिए, इरिगेशन पानी पहुंचाने का जो काम है वो बहुत जरूरी है. एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और एक तो पानी की जरूरत. अपर रीजन्स में कोई नदी नहीं बहती अपने पास, तो उन एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए इस इरिगेशन प्रोजेक्ट को लाया गया. और राइट नाउ टिल डेट 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ. 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ. द देन चीफ मिनिस्टर केसीआर, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर, ये तीनों चीफ मिनिस्टर्स मिलके इसका इनॉग्रेशन करें. ओके, दिस वाज द बिगेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ. as of now also it is the still the biggest irrigation project till now, till date. Okay, do understand that. Okay, to solve the problem of water problem or water scarcity in Telangana government came up with a new project. Okay, this project was called a masterpiece, or masterpiece of this Telangana government. Okay, do understand this one. Due to this only, lot of problems of water, the problem of water scarcity has been solved in Telangana, rural Telangana. You can say that rural Telangana. Okay, some parts of urban Telangana are also connected with it. Okay, to solve the problems, definitely this project has been the masterpiece. This project has came up with a new life, new limelight for this Telangana government. Okay, okay, this has been the biggest project till now. And one more thing is, अगर हम इस पे गौर करें तो कालेश्वरम एक एरिया है जहां पे ये दो रिवर्स मीटअप करते, गोदावरी रिवर और प्राणहिता रिवर. ये दोनों का एक मीटिंग पॉइंट है. और उस मीटिंग पॉइंट से गवर्नमेंट, ये जो प्रोजेक्ट था, क्या करे, उस मीटिंग पॉइंट से पानी को उठा के रूरल एरियाज के अपर रीजन्स में पहुंचाने की पूरी कोशिश करें. और इट हैज बीन अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट. इट टुक अराउंड 6 to 8 years to complete this particular project. Do understand this one? It costed around more than 80,000 crores. Okay, the then chief ministers have inaugurated this particular project. Understood this one? Okay, the question might be asked for you all again. Write about the Kaleshwaram lift irrigation project. Then definitely you can collect the facts and write about this particular project. Understood everyone? Okay, so anybody, any participant, if they are having any doubt, can ask me. Do remember this one. Okay, किसी को अगर किसी तरह का डाउट है तो पूछो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन. No, sir. ये परसों जो मार्च में एग्जाम हुआ आपका, मार्च और अप्रैल में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा. ओके, द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन आस्क्ड in the recent examination. Do remember that this is very important. This has great importance right now. Okay, there is a strong possibility that this question might be asked once again. Okay, understood everyone? Sir. Okay.
अभी आवाज आ रही? Okay. Yes, participants, if anybody is having any doubt, you can ask me. I'm here to respond all of your doubts. Okay. पेज नंबर बोलूं? ये जो आंसर है कालेश्वरम का बाबा, कालेश्वरम का आंसर आप बेहतर है कि उसकी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बुक में जो पेज नंबर 144 पे आपके पास है आंसर, बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर 5 मार्क्स. डू रिमेंबर दैट. आप गूगल पे से उसकी नोट्स बना लीजिए, ठीक है? ऑनलाइन के कोई सोर्स से निकाल के उसकी नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, इजीली हो जाता. ठीक है. रूरल इंडिपेंडेंस का आंसर का मैं पेज नंबर बोल देता हूँ, लिख लो. पेज नंबर 73 पे देखो बाबा, पेज नंबर 73, शाइन की इकोनॉमिक सेकेंड ईयर मटेरियल पे, एट द टॉप, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रूरल इंडिपेंडेंस, पेज नंबर 73. चलिए, ओके. और कोई डाउट? कल लिख दिया था ना बोर्ड पे? कल के तो बोर्ड पे लिखा पूरे, देख लो चलो. Yet anybody is having any doubt? Yes. If you don't have any doubt, I'll close the session and I'll move. Okay. From tomorrow I'll start VSAQs पापा. Okay. देखो 3 LAQs पढ़ लीजिए, एक 4-5 SAQs पढ़ लीजिए, एक 20 to 25 VSAQs पढ़ लीजिए. Definitely you will score more than 50 marks. I can guarantee you. Okay. See, whatever the 3 questions which I have given in for your examination the day before yesterday, I have taught you. Since last week I'm teaching this. 3 LAQs you need to learn, and learn at least 4 to 5 SAQs and 20 to 25 VSAQs. Definitely you will pass. You can score more than 50% of your marks. I can guarantee you. Everybody, do remember that. Don't lose a chance for this time. Okay. This paper is very easy. One thing is you need to be clear that what you need to learn, you should be clear. अगर आपको ये मालूम है कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, ये आपके माइंडसेट में क्लियर रहा, तो डेफिनेटली अगर आप पढ़ लिए तो आप डेफिनेटली विल पास आउट. ओके. नेक्स्ट ईयर अगेन यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू आर नॉट पासिंग आउट दिस. होता क्या कि भाई यू विल गेट डिले, एंड degree also will get delay, admissions, you lose the admission. Okay. There are a lot of consequences which you need to face. Okay. Do remember that. Try to read, try to learn right now. Okay. Practice this. One more thing you need to be clear that you need to practice these answers. See, economics second year, it is very vast, but one thing is, if you have a good practice, definitely you can achieve good marks. Understood everybody? Okay. So if you are not having any doubt, then I will end this session. Okay.